Hello 10th standard students. Today we are going to learn about the chemical reaction and equation. आज हम लोग केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। इसमें सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखें यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस in which some substance undergo bond breaking and are transformed into new substance by formation of new. Chemical reaction is a process in which some substance undergo bond breaking and transform into new substance by formating new bonds. Chemical reaction एक ऐसा process है जिसमें कुछ substance जो होता है undergo bond breaking मतलब उनका bond break होता है and transform into new substance, और नए substance में transform होते हैं, इसी को बोलते हैं formation of new bond, right? तो केमिकल क्या है, एक रिएक्शन है, एक प्रोसेस है इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो सम बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म टू न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, राइट। दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट। सब्सटेंस दैट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। whereas substance formed as a result of chemical reaction by formation of new bond is called product, और जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? वापस बोलता हूँ, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस, राइट। सब्सटेंस विच आर टेकिंग पार्ट दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड whereas सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे अभी ये एग्जांपल में CuSO4 प्लस Zn मिलके ZnSO4 बना, तो ये दोनों हो गए रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट बनता है और जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? वही यहाँ पे क्या लिखा है, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, वेयर सब्सटेंस फॉर्म द result of chemical reaction by forming new bonds is called product. Is this clear? Next is rule for writing chemical equation. In chemical equation, the reactants are written on left side and while the products are written on right side. reactant left side में लिखते हैं, जैसे एग्जांपल में लेफ्ट साइड में reactants है, राइट साइड में प्रोडक्ट है, and products are right on the right hand side. An arrow heading towards the product is drawn in between them. दोनों के बीच में एक arrow आता है। The arrow indicate the direction of reaction. Arrow क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखाता है, राइट। If reactants or product are two or more, अगर reactants और product दो या दो से ज़्यादा है, they are linked with plus sign. इसको किससे जोड़ते हैं, प्लस साइन से जोड़ते हैं। In between the, for example, in the equation 2, a plus sign plus is drawn in between the reactants CuSO4 plus Zn के दोनों के बीच में प्लस साइन है। Similarly, plus sign is drawn between the products, प्रोडक्ट के बीच में प्लस साइन है। Is this clear? Next is, now we learn the types of chemical reaction. Chemical reaction are classified into following 4 types in accordance with the nature and number of reactants and the product. 4 टाइप में डिवाइड है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब when 2 or more reactants combine in reaction to form a single product, it is called combination reaction. मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल दिया है CaO plus H2O, तो CaOH2 है, तो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड रिएक्शन। इज दिस क्लियर? व्हेन 2 or more reactants combine in reaction to form a single product is called combination reaction. Next is decomposition reaction. Chemical reaction in which 2 or more product are formed from single reactant, मतलब रिएक्टेंट एक रहेगा लेकिन प्रोडक्ट दो बनेगा, तो इसको बोलेंगे decomposition reaction. Examples: 2H2O is converted into 2H2 plus O2, और यहाँ पे भी CaCO3 है तो CaO plus CO2 अलग अलग हो गया। तो मीन्स द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more product form because of the single reactant is called decomposition reaction. Is this clear? Next is displacement reaction. The reaction in which place of ion of less reactive element in compound is taken by another more active element by formation of its own ions is called displacement reaction. मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर डिस्प्लेस करता है तो उसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दिस क्लियर? द रिएक्शन इन विच प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या शॉर्टकट में लिख सकते हैं, रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज टेकन बाय द मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन। इज दिस क्लियर? द एग्जाम्पल फॉर दिस, this is just 2 example of displacement reaction.
जैसे Cl2 प्लस 2NaBr रिएक्टेंट है, तो अभी कंबाइन हो गया। इसमें क्या हो गया, Cl की जगह पे Br ने ले लिया, Br की जगह पे Cl ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया NaCl प्लस Br मीन्स Br कम्स इन प्लेस ऑफ Cl एंड Cl कम इन प्लेस ऑफ Br, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें ब्रोमाइन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों का कम्बिनेशन हुआ तो KBr हो गया और I2 अलग हो गया, आयोडाइड अलग हो गया एंड ब्रोमाइन पोटेशियम एक साथ हो गया। इज दिस क्लियर? These two are the displacement reaction. Okay, next is double displacement reaction. The reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate are called double displacement reaction, right? Double displacement reaction means in which the reactants are exchanged to form a precipitate. एक्सचेंज रिएक्टेंट जो है एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दिस क्लियर? द रिएक्शन इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज, आयन जो होते हैं रिएक्टेंट्स में एक्सचेंज होते हैं टू फॉर्म प्रेसिपिटेट करने के लिए, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Endothermic process, heat from outside is absorbed during some physical change, for example melting of ice, dissolution of potassium nitrate in water, therefore this is called endothermic reaction process। मतलब अगर हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट लेते हैं, जैसे आइस मेल्ट होता है तो हीट लेता है, तो हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड नेक्स्ट इज ऑन द अदर हैंड हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग द सम फिजिकल चेंजेस, हीट को बाहर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ आइस, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक में हीट लेते हैं और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज करते हैं। इज दिस क्लियर? देन टोटल द क्वेश्चंस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर टुडे इज ऑल दिस क्वेश्चंस यू हैव टू प्रिपेयर एज अ होमवर्क फॉर टुडे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द फॉलोइंग विद एग्जांपल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इज दिस क्लियर? तो सबके एग्जांपल्स लिखने हैं और सबको मीनिंग भी एक्सप्लेन करना है। वापस रिपीट करो, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। एक्सप्लेन अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया। जैसे अभी इसमें NH3 और HCl दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इट इज़ रिएक्टेंट्स और दिस इज़ द प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज देन एक्सप्लेन अबाउट द फॉलोइंग विद एग्जांपल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका मीनिंग और एग्जांपल लिखना है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मीनिंग एग्जांपल लिखना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मीनिंग एग्जांपल लिखना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मीनिंग एग्जांपल लिखना है। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या लिखेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस, and exothermic में water converted into ice. Is this clear? Then write the answer of all these questions. If any doubt is there, please ask. Right? अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप व्हाट्सअप करो, मैं इसका आंसर आपको सेंड कर दूंगा। एंड once the class will resume regularly, then we will go with the textbook word to word. Till that time, whatever concept is there, I will explain the concept and you have to prepare the notes for that concept. For today's homework, you have to write these 3 questions answer. First question, second question, third question. In third question, there are sub question, 6 sub questions are there. Okay. Then for today's homework, these 3 questions. In third question, there are 6 sub questions. Okay. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.